Okay, so yes, the recording is started. Okay, so hi all, welcome again. So yes, let's discuss yesterday's topic. Like yesterday, we have covered one basic model, that is the SDLC, right? A software development lifecycle model. Okay, and we have covered some of the phases of this software development lifecycle. SDLC stands for Software Development Lifecycle. Okay, we have seen definition, basic parts of it, right? And the different phases. Like first one phase is the requirement collection and analysis, right? Okay, first one phase is the requirement collection and analysis. Later on, second phase we have uh, like design phase, right? Third phase we have seen is the development. Fourth phase we have seen is the testing phase. Then fifth phase we have covered. Okay, once the testing part is done, then next phase is the deployment. And the next, guys, please stop annotations. Okay, let me stop from my end only. Okay, yeah, fine. Okay. Okay, fine. Okay, so fifth phase we have covered, that is the deployment, actual deployment of the software for live environment, so that end user, end customer can access the software, right, or the application. Okay, and the last phase we have covered, that is the maintenance phase, right? So yes, ये जो हमने बेसिकली प्रोसेस देखा, राइट, इसमें जो डिफरेंट सिक्स फेजेस देखे, यही सिमिलर सॉर्ट ऑफ फेजेस हमें आगे की डिफरेंट मॉडल्स में स्टडी करने हैं उसी के अकॉर्डिंग. सो लेट्स see the first reference model, okay, with respect to this. Okay, so basically अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू फर्स्ट रेफरेंस मॉडल, दैट वन इज द फिश मॉडल. ओके, आई विल राइट सम नोट्स एंड लेटर ऑन we'll discuss on this as well. Okay, so fish model is the reference model with the reference to your SDLC. Okay, yeah, fine, let me go to here. Okay, yes, perfect. Okay, so yes, so first one is the reference model, that is the fish model. Okay, it is just a reference model. With the help of this model, we are going to cover up different other model as well. Okay, so yes, so let's see the fish model. Okay, so all phases of software development life cycle, all the phases of software development life cycle is used in fish model. Okay, this one is the first point. जो भी हमने सिक्स फेजेस देखे या जो भी डिफरेंट फेजेस देखे एसडीएलसी के, वो सारे कुछ यूज हो गए इन केस ऑफ फिश मॉडल. The phases are associated by verification and validation process, right? ये two new words है as compared to yesterday session, right? इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे आने वाले फेज इसमें phases में. Okay, to achieve the development of software application, basically this one is the fish model follows all the steps, all the phases of your SDLC, software development life cycle. The phases are associated with verification and validation process to achieve the development of application, right? Software application. Okay, so fish model में भी अगर हम देखते हैं तो इसी में भी similar sort of phases है. First one phase is your planning and requirement phase, right? सेकेंड वन फेज इज द एनालिसिस. यहाँ पे हमने जस्ट वो दोनों को कंबाइन करके देखा था, राइट? लाइक फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस, यहाँ पे दो डिफरेंट फेजेस है, एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट वन इज यहाँ पे प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट. ओके, सेकेंड वन इज द एनालिसिस फेज. थर्ड वन इज द डिजाइन फेज. फोर्थ वन इज द डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन फेज, sorry, development or implementation coding phase. Next one is the testing phase. The next one is the deployment phase, actual deployment of the software application. And last one is the maintenance phase, right? सो यहाँ पे हमने क्या किया ना, बेसिकली जो एसडीएल से प्रोसेस देखा था उसमें हमने कंबाइन लिखा था वहां पे कि लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस. तो यहाँ पे उसके दो डिफरेंट फेज है. थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे, रेस्ट ऑफ द फेजेस आर सिमिलर. ओके, तो हर एक फेज के बारे में हमने देखा था उसी सिमिलर मैनर में विथ रिस्पेक्ट टू एक इमेज, जो फिश मॉडल का इमेज है ना, उसी रिस्पेक्टिव हम बात करेंगे. ओके, so let's see. तो ये बेसिकली
फिश मॉडल का एक रेफरेंस ब्लॉक डायग्राम है जहां से हमें देखना है ये सारी चीजों को मैप करके, राइट। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप अगर देखते हो ना, तो फर्स्ट फेज था रिक्वायरमेंट कलेक्शन और रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दिस वन इज द फर्स्ट फेज, ओके। सो यहाँ ये फर्स्ट फेज में क्या होगा ना, जो भी आपका बिजनेस पर्सन है, दैट इज द बिजनेस एनालिस्ट, वो विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के साथ उनका इंटरेक्शन रहेगा, और जो भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट बोलता है उसी के हिसाब से उसका डॉक्यूमेंटेशन होता रहेगा, राइट। सो फर्स्ट वन फेज इज योर रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट कलेक्शन। अभी क्लाइंट से या कस्टमर से जो भी रिक्वायरमेंट आता है ना, उसी का डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, राइट, हमने जैसे देखा था। सो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही बिल्टअप होता, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा ना, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, राइट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देखे थे, उसको मैप करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन तो हमने फर्स्ट फेज में क्या किया, रिक्वायरमेंट कलेक्ट की, उसी रिक्वायरमेंट को हमने क्या किया, एनालिसिस किया, ओके। सो एनालिसिस में जो भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट वन हमें मिलेगा, दैट इज द बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, राइट, बीआरडी डॉक्यूमेंट। और उसका रिव्यू होगा, इट मींस क्या रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट बना है विद द हेल्प ऑफ टीम उसको शेयर किया जाएगा, मीटिंग्स में डिस्कस होगा, जो भी उसमें एड ऑन चाहिए क्लाइंट के साथ बीए डिस्कस करके या टीम के साथ डिस्कस करके उसमें पॉइंट ऐड होते रहेंगे, राइट। सो दिस वन इज द फर्स्ट फेज, मतलब आपका ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग या कलेक्शन हो गया, और जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसका एनालिसिस हो गया, और उसी के बेस पे आपका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो गया, दैट इज द बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ओके। अभी ये तो कवर अप हो गया, राइट। इसी डॉक्यूमेंट्स में से लाइक बिजनेस डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट का है, उसी के ऊपर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनेगा आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके अलग अलग नाम से गाइस, ओके। सो ये जो फर्स्ट फेज है ना, यहाँ पे सिर्फ आपका रिक्वायरमेंट कलेक्शन होगा, कहाँ से, फ्रॉम क्लाइंट एंड से, ओके। ये काम कौन करेगा, आपका बीए, जो बिजनेस पर्सन है, राइट, वो काम करेगा। और इसी के ऊपर आपका जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया है, इसी का आपका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होगा, दैट इज द बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, राइट, ओके। सो इसी के ऊपर आपका एनालिसिस होगा, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट कलेक्ट की है फ्रॉम द क्लाइंट, उसी का एनालिसिस होगा, राइट। एनालिसिस में क्या होगा रे, जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रहा है रिव्यू, मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, राइट, तो उस रिक्वायरमेंट का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनेगा और उसी का रिव्यू होगा, ओके। उसी का रिव्यू मतलब रिव्यूइंग विद द टीम, ओके। टीम के साथ उसका रिव्यू होगा, ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनेगा विद द हेल्प ऑफ टीम उसका रिव्यू होगा। और जैसे ही वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव होता है, तो बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बिल्डअप होगा, ओके। बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास बीआरडी है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट आपको दी है, उसी के ऊपर आपका क्या रहेगा, एफआरडी, दैट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, या इसी का सेकंड नाम है, ओके, लेट मी हाइड दिस, इसी को आप बोल सकते हो, दैट इज द यस आर यस, दैट इज द सॉफ्टवेयर, ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायर, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स रहेंगे गाइस, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ओके, जो मोर टेक्निकल रहेगा, ओके, स्पेसिफिकेशंस, ओके, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ओके। सो एनालिसिस फेज में क्या रहेगा, आपका जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उसी के ऊपर एनालिसिस होगा, और बेस्ड ऑन दैट मोर टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनेगा। सो यहाँ तक हमने देखा, राइट। सो जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनेगा, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट का, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनेगा, उसी का भी रिव्यू होगा, मतलब जो भी चीजें ऑन डॉक्यूमेंट साइड है ना, उसी का वैलिडेशन हो, मतलब वेरिफिकेशन होगा कि जो भी डेटा एनरोल किया है वो सफिशिएंट है क्या, जो भी डेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल किया है वो करेक्ट है क्या, ये सारे कुछ चीजें यहाँ पे चेक होगी, राइट। जैसे हमने देखा था ये 2 फेजेस में। नेक्स्ट फेज आता है, देखिए आपका फर्स्ट वन फेज इज योर कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट बनेगा। सेकंड थिंग इज योर एनालिसिस फेज, जहां पे बेस्ड ऑन दिस सम टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनेगा विद द हेल्प ऑफ टीम, राइट। देन नेक्स्ट फेज आता है आपका डिजाइन फेज, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपका हाई लेवल डिजाइन, एंड हमने देखा था लो लेवल डिजाइन, ओके। मतलब
लो लेवल डिजाइन, जो भी आपका डिजाइनिंग पार्ट है, पर्टिकुलर वेब पेज कैसे दिखेगा, मोबाइल एप्लीकेशन बन रहा है तो उसका फ्रंट फेस कैसा दिखेगा, ये सारी कुछ चीजें डिजाइन फेज में कवर अप होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो भी नेक्स्ट फेज रहेगा ना, दैट इज योर डिजाइन फेज। और जो भी डिजाइन के अक्रॉस डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे आपके, हाई लेवल या लो लेवल, जो भी डिजाइन प्लान बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, रिव्यू भी होगा उसी डॉक्यूमेंटेशन का। ओके, सो ये हो गया आपका गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, उसी के बेस पे थोड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और नेक्स्ट फेज में आपका डिजाइनिंग पार्ट भी हो गया। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, जैसे आपका BRD, ESRS या फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, या डिजाइन में HLD, LLD, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा ना उसका रिव्यू रहेगा। और उसी रिव्यू प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन बोलते हैं। सिंपल, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन साइड पे टीम के साथ बैठ के रिव्यू होगा, मीटिंग में डिस्कशन होगा, जो भी पॉइंट मिसिंग है वो क्लाइंट के साथ BA चेक करेगा, उसको अपडेट करेगा, उसी पार्ट को क्या बोलेंगे हम, वेरिफिकेशन पार्ट। ओके, सो ये था आपका डिजाइनिंग फेज। नेक्स्ट, गाइस प्लीज कीप ऑन म्यूट। ओके, सो ये हो गया आपका बेसिकली डिजाइन फेज। हमें जस्ट अभी मैप करते चलना है SDLC मॉडल को। ओके गाइस कीप ऑन म्यूट। ओके लेट मी म्यूट, या थैंक यू। ओके ओके, सो हमने नेक्स्ट फेज देखा था, फोर्थ वन, लाइक नेक्स्ट फेज देखा था हमने, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन फेज। मतलब यहाँ पे एक्चुअल आपका क्या रहेगा रे, कोडिंग होगा, राइट। यहाँ पे जो आपका रहेगा वो एक्चुअल कोडिंग रहेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपका कौन सा फेज है, कोडिंग है। ओके, सो कोडिंग करने का काम बेसिकली डेवलपर का है, राइट। सो डेवलपर जैसे ही उनका प्रोग्राम लिखता है, जो भी बिजनेस लाइक प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो बिल्डअप करता है, उनके एंड से भी वो खुद एक टेस्टिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। सो कोडिंग करने के बाद वो पर्टिकुलर प्रोग्राम, देखिए वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या कोड रन हो रहा है नहीं, राइट, एज पर द फंक्शनलिटी, वो चेक करने के लिए जो भी टेस्टिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। ओके, सो ये हमें याद रखना है, लेकिन डेवलपर के साइड से जो भी टेस्टिंग होता है उसी का हम क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। मतलब डेवलपर ने जो भी बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट किया है, जो भी प्रोग्राम बिल्ट अप किया है, राइट, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट, वो चेक करने के लिए वो पर्टिकुलरली जो टेस्टिंग करते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट फेज हो गया, दैट इज द डेवलपमेंट फेज और कोडिंग फेज। ओके, जैसे ही खत्म होता है ना कोडिंग, तो हमने क्या देखा था कि नेक्स्ट फेज आता है अपना टेस्टिंग फेज, राइट। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्टिंग फेज। तो टेस्टिंग फेज में है ना डिफरेंट डिफरेंट फेजेस अवेलेबल होते हैं। तो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस मॉडल। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है बेसिकली। और इंटीग्रेशन क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी लेट्स यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एक एप्लीकेशन लेते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर का सिंपल एप्लीकेशन रखते हैं। ओके, कोई हमें है ना वेबसाइट पे, कोई भी बैंक का जो वेबसाइट है ना, वहां पे हमें EMI कैलकुलेटर बनाना है, राइट। सो या बेसिक कोई भी इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बनाना है, और वहां पे हमने बेसिक फंक्शनलिटी देख रहे हैं। फर्स्ट वन तो एडिशन चाहिए हमें, देन सब्ट्रैक्शन चाहिए फॉर एग्जांपल। ओके, देन हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ओके, एक बेसिक लेवल का कैलकुलेटर करते हैं, सो दैट you'll हैव अंडरस्टैंडिंग। मल्टीप्लिकेशन चाहिए एंड नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन चाहिए हमें, राइट। ये सारे ऑपरेशन चाहिए। तो डेवलपर क्या करेगा, फर्स्ट थिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से एडिशन के लिए एक प्रोग्राम रन करे लिखेगा, देन सब्ट्रैक्शन के लिए एक प्रोग्राम रन करेगा, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए एक प्रोग्राम रन मतलब राइट करेगा, और देन डिवीजन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक हाई लेवल पे आपको एक जस्ट कोडिंग प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ओके, इंट ए, ये वेरिएबल है बेसिकली, इंट ए इंट बी इज इक्वल टू 20, दो नंबर्स है बेसिकली। ओके, नंबर्स है, तो हमें एडिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी, इंट सी। ओके, सी एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, तो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये शॉर्ट प्रोग्राम हो गया फॉर एडिशन। देन हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी फॉर एग्जांपल। ओके, देन हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन
बी, ए मल्टीप्लाई बी, और हमें डिवीजन चाहिए तो सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लॉजिक है जो डेवलपर कोड करेगा उनके एंड से, राइट। इसमें हमारा कुछ कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करके लेना है कि डेवलपमेंट साइड पे थोड़ा बहुत क्या होता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल डेवलपर ने ये प्रोग्राम किया, राइट, ये प्रोग्राम किया, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए अभी फॉर एग्जांपल जैसे ए का वैल्यू 10 रखा है, बी का 20 रखा है, तो इसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या आना चाहिए रे, 30। इन अ सिमिलर मैनर कुछ अनदर डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करके है ना, यहाँ पे लाइक 30 20, तो इस 30 20 है तो आउटपुट आना चाहिए 50। सो ये जैसे प्रोग्राम लेवल पे जो भी टेस्टिंग रहेगा तो उसी को हम बोलेंगे, मतलब डेवलपर साइड से जो भी टेस्टिंग रहेगा प्रोग्राम लेवल पे, मॉडल लेवल पे, उसी को हम बोलेंगे यूनिट टेस्टिंग। ओके, तो इससे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मॉडल्स हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए फीचर्स हो गए आपके, मॉडल्स हो गए। ओके, ये वर्ड आपको याद रखना है, फीचर्स मॉडल्स। ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके फीचर्स रिक्वायरमेंट के अक्रॉस डेवलप हो गए, उसी के लिए एक अलग प्रोग्राम रहेगा। जो सेकंड फीचर है उसी के लिए अलग प्रोग्राम रहेगा, राइट। और अब ये जो प्रोग्राम राइट किया है ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चेक करने के लिए डेवलपर जो भी टेस्टिंग करता है उसी को बोलते हैं बेसिकली यूनिट टेस्टिंग, राइट। ओके फाइन। अभी क्या होता है देखिए, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपर ने प्रोग्राम भी किया, उसी को चेक भी किया, सही से काम भी कर रहा है, राइट। बट जब टोटल ये चारों भी फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट होती है तो हमें ये भी क्रॉस चेक करना पड़ता है कि एडिशन सही से चल रहा है तो उसके साथ सब्ट्रैक्शन भी चल रहा है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन सही से हो रहा है तो उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है क्या, राइट। अगर ये तीनों भी सही से चल रहे हैं तो उसी के साथ डिवीजन पे वर्क हो रहा है क्या। सो दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग जो भी है उसी को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फेज ऑफ टेस्टिंग, दैट इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। गाइस इसी का हर एक का है ना इन डिटेल है हमें आगे, अभी जस्ट हमें रेफरेंस देखना है हर एक फेज के हिसाब से। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब आपका क्या हो गया कि जो भी रिस्पेक्टिव मॉडल है ना वो तो काम कर रहा है ठीक है यूनिट लेवल पे, बट उसी के साथ जो भी सेकंड मॉड्यूल डेवलप हुआ है, जो भी सेकंड प्रोग्राम है, वो भी सही से काम कर रहा है क्या, वो भी हमें चेक करना पड़ता है, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन चेकिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मैं जस्ट यहाँ पे अभी आपको कीवर्ड हाईलाइट करके दे रहा हूँ। ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है ना ये दोनों साइड से होता है, बेसिकली ये आपका डेवलपर साइड से भी हो सकता है प्लस आपके टेस्टर साइड से भी हो सकता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप ऐसे समझ लो, ये फेज में बेसिकली डेवलपमेंट फेज में जो भी डेवलपर इन मॉडल का चेक करेगा मॉडल लेवल पे, हर एक फीचर लेवल पे, वो होगा आपका यूनिट टेस्टिंग। और दोनों को कंबाइन करके, तीनों को कंबाइन करके, चारों को कंबाइन करके जो भी टेस्टिंग रहेगा उसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग कोड लेवल पे, बेसिकली कोड लिखने का काम कौन कर रहा है, डेवलपर, राइट। तो कोड लेवल पे जो भी टेस्टिंग करेगा वो डेवलपर करेगा, मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर भी कर सकता है। और फंक्शनैलिटी लेवल पे जो भी टेस्टिंग हम करेंगे वो रहेगा टेस्टर साइड टेस्टिंग, वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे अपकमिंग सेशंस में। एज ऑफ नाउ आप समझ लो यूनिट टेस्टिंग जो है वो बेसिकली डेवलपर ही करेगा ओनली, यहाँ पे हमारा कुछ रोल नहीं है, राइट। यूनिट टेस्टिंग जो रहेगा हर एक मॉड्यूल का, जैसे ही वो डेवलप करता है उसी के अक्रॉस जो टेस्टिंग करेगा दैट इज द यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट फेज में आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपका डेवलपर भी काम करता है ऑन अ कोड लेवल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो भी कोड है, कोड तो डेवलपर को पता है, राइट। ऑन अ कोड लेवल जो भी टेस्टिंग करना है वो डेवलपर करेगा, और टेस्टर जो रहेगा ना ऑन अ फंक्शनलिटी लेवल। फंक्शनल मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल जो भी वेबसाइट हमें मिलेगा, जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम जाके देखेंगे 10, वहां पे इनपुट बॉक्स में 10 डालेंगे, सेकंड इनपुट बॉक्स में 20 डालेंगे, और जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमें एडिशन क्या मिलना चाहिए, 10 प्लस 20 30 मिलना चाहिए। तो ये हो गया फंक्शनल साइड पे। लेकिन डेवलपर है ना ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग ही चेक करेगा कि ए की वैल्यू में यहाँ पे 10 रखता हूँ, बी की 20 रखता हूँ, और आउटपुट मुझे 30 एक्सपेक्टेड है इन अ सिमिलर मैनर, राइट। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट, राइट। सो ये फेज में है ना जैसे ही ये कवर अप होता है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट फेज देखिए, टेस्टिंग फेज है। तो टेस्टिंग फेज में है ना बहुत सारे लेवल्स की टेस्टिंग होते हैं। तो इसमें है ना सिस्टम टेस्टिंग होता है, राइट।
सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे हमारा मेजर रोल है ना फंक्शनल पार्ट पे, फंक्शनल टेस्टिंग पे होता है, ठीक है, एंड नॉन फंक्शनल पे भी होता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट स्कोप, मतलब प्रोजेक्ट का स्कोप जैसा है उसी तरह से हम टेस्टिंग करेंगे, राइट। मतलब हमारी जो भी स्कोप में रहेगा उसी के हिसाब से टेस्टिंग होता रहेगा। और फंक्शनल साइड पे जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा, फंक्शनल साइड पे मतलब क्या कि 10+20 किया तो एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे क्या है, 30 एक्सपेक्टेड है, राइट। और नॉन फंक्शनल पे हमने क्या देखा था, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस चेक होता है, उस उसी एप्लीकेशन के ऊपर हम लोड देते हैं, उसी के ऊपर हम ट्रेस देके देखते हैं, उसी के ऊपर हम वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूजर्स अप्लाई करके देखेंगे, वो हो गया आपका नॉन फंक्शनल लेवल पे टेस्टिंग। ओके, सो जैसे ही आपका टेस्टिंग फेज में बेसिकली आप फंक्शनल साइड पे भी चेक करते हो, नॉन फंक्शनल साइड पे भी चेक करते हो, और यहाँ पे भी सब कुछ ओके होता है, तो हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं, दैट इज द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है बेसिकली आपका, देखिए इसका गाइस डेडिकेटेड स्लाइड है। ओके, एक्सेप्टेंस, ओके, ठीक है, टाइपो जो भी रहेगा इग्नोर कर दो। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में है ना आपका क्लाइंट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, आपका बीए रहेगा, ओके, और आपकी रिस्पेक्टिव टीम रहेगी। ओके, तो देखते हैं कैसे रहेगा। अभी यहाँ पे समझ लो, फर्स्ट फेज ने क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बोली कि हमें कैलकुलेटर चाहिए जिसमें ये चारों भी ऑपरेशन होने चाहिए, राइट, ठीक है। ओके, सो ठीक है, एनालिसिस यहाँ पे हमने उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बना दिया कि हमें एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार रिक्वायरमेंट उसमें डाल दी, राइट। बेस्ड ऑन दैट हमने एनालिसिस की थोड़ा, राइट, उसी के ऊपर थोड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बना दिया जो डेवलपर समझ पाए। ये फॉर एग्जांपल वी नीड अ 2 इनपुट्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड अ 1 आउटपुट, राइट। इस लेवल से हमने थोड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बना दिया। देन जो भी डिजाइनिंग टीम है उन्होंने जो भी कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वेबसाइट पे उसका इंटरफेस बना दिया, मतलब वो कैसा दिखेगा, बटन कितना कौन से कलर का रहेगा, इक्वल टू साइन कहाँ पे रहेगा, मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे रहेगा, ये सारी कुछ चीजें है ना डिजाइन में फिक्सअप हो गई। ओके, सो ये तीनों भी डॉक्यूमेंट जैसे ही बने, ये आपका बीआरडी, आपका एफआरडी और आपका डिजाइनिंग, उसी के हिसाब से डेवलपर ने क्या किया रे, उसी को कोडिंग किया। ओके, तो जो भी फीचर बोले थे, जो भी रिक्वायरमेंट बोली थी, उसी के हिसाब से उन्होंने ना 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स लिख दिए। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, और हर एक प्रोग्राम के हिसाब से जो भी उनका टेस्टिंग रहेगा दैट इज देयर यूनिट टेस्टिंग, मतलब हर एक फीचर के हिसाब से उनका जो भी टेस्टिंग रहेगा दैट इज ए यूनिट टेस्टिंग। मतलब आप समझ लो यहाँ पे भी यूनिट टेस्टिंग होगा, ओके, यहाँ पे भी यूनिट टेस्टिंग होगा डेवलपर साइड से, यहाँ पे भी यूनिट टेस्टिंग होगा, ओके, डेवलपर साइड से। और ये जो फोर्थ फीचर था या ये जो फोर्थ मॉड्यूल रहेगा यहाँ पे भी यूनिट टेस्टिंग होगा। और ये यूनिट टेस्टिंग का काम किसका रहेगा या वर्क कौन करेगा, तो आपका डेवलपर्स करेगा, राइट। डेवलपर जो भी पर्टिकुलर फीचर पे काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 4 डेवलपर है एक टीम में, तो फर्स्ट डेवलपर फॉर एग्जांपल एडिशन पे काम कर रहा है तो उसका काम है उसका यूनिट टेस्टिंग करना। सेकंड डेवलपर है अगर वो सब्ट्रैक्शन मॉडल पे काम कर रहा है तो उसका काम है लाइकवाइज। ओके, सो जैसे ही ये चारों फीचर डेवलप होते हैं ना, तो इसी का डेवलपर कोड लेवल पे भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके कि ये दोनों सही से काम कर रहे हैं नहीं, ये तीनों सही से काम कर रहे हैं नहीं, ये चारों सही से काम कर रहे हैं नहीं, उसी के हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये कौन चेक करेगा, आपका डेवलपर भी चेक करेगा। ओके, वंस डेवलपर के एंड से डन होता है और जब हमारे पास है ना ये टेस्टिंग फेज में आता है, तो वो उसी टाइम हम भी उसी का क्या करते हैं रे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ओके, हम भी उसी का इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ सो दैट आपको आइडिया रहेगी। ओके, सो लेकिन फ्रॉम टेस्टर पर्सपेक्टिव हम जो भी टेस्टिंग करेंगे वो फंक्शनल साइड पे करेंगे। मतलब अभी तक मतलब ये टेस्टिंग फेज के लिए ना आपका सॉफ्टवेयर बिल्ट रेडी रहेगा। ओके, जैसे हमने लास्ट में बात की, सॉफ्टवेयर बिल्ड रेडी रहेगा, मतलब आपको यहाँ पे यूआरएल दी जाएगी, आपका मोबाइल ऐप है तो उसका एपीके
पैकेज आपको मिल जाएगा, iOS से तो iOS का पैकेज मिल जाएगा, राइट। सो आप ये पर्टिकुलर यूआरएल ब्राउजर में लॉन्च करेंगे और उसी के हिसाब से आप इनपुट पुट अप करके वहां पे फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे और उसी में वन काइंड ऑफ आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग आएगा। ओके, मेजरली आपके दो टाइप की टेस्टिंग रहेगा, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, राइट। एंड देर इज वन मोर टेस्टिंग गाइस, वन मोर टेस्टिंग। जैसे ये आपका बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग कवर अप होता है ना हमारे एंड से, इंटरनल टेस्टिंग जैसे डन होता है। फॉर एग्जांपल डेवलपर भी इंटरनल कंपनी के अंदर टेस्टिंग करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट इन्फोसिस के पास है तो इन्फोसिस की जो भी डेवलपर है वो उसका टेस्टिंग करेंगे, इन्फोसिस की जो भी टेस्टर है वो फंक्शनल साइड नॉन फंक्शनल साइड पे टेस्टिंग करेंगे, राइट। अभी क्लाइंट ने यहाँ पे 4 फीचर बोले थे, राइट, रिक्वायरमेंट में, तो वो चारों भी फीचर हमने डेवलप किए इंटरनली, ओके, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमें है ना वो क्लाइंट को शो करने हैं कि मतलब हमारे टीम ने ये चारों भी फीचर बनाए हैं और आप एक बार देख लो, अगर ये चारों भी फीचर आपके सही से आपको लग रहे हैं, देन एंड देन ओनली हम उसी को क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, सो दैट एसबीआई के जो भी एंड यूजर्स है वो यूज कर पाएंगे। ओके, सो उस सिचुएशन में क्या होता है ना आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, तो इसी को यूएटी बोलते हैं बेसिकली। ओके, यूएटी बोलते हैं, कई जगह पे इसको सीएटी भी बोलते हैं, सीएटी। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या आपका हो गया क्लाइंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, जो भी यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, क्लाइंट इन्वॉल्व रहेगा, रिक्वायरमेंट कलेक्ट किसने किया था, बीए ने किया था, डेवलप किसने किया है, डेवलपमेंट टीम ने किया है, राइट, डेवलपर्स ने किया है। ओके, और इसको टेस्ट किसने किया है, टेस्टर्स ने किया है, राइट, टेस्टर्स ने किया है। सो जो भी आपकी टीम है तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में है ना इन्वॉल्व हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट क्या चेक करता है ना, तो कि जो भी हमने ये चारों भी रिक्वायरमेंट बताई थी वो फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव सही से चल रही है कि नहीं। ओके, वो चेक होगा बेसिकली वहां पे। ओके, और यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज आती है, तो या अभी आप जस्ट है ना फॉर अ रेफरेंस, यहाँ पे आती है अल्फा टेस्टिंग, ओके, एंड अनदर वन इज बीटा टेस्टिंग। ठीक है, ओके। सो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आपका क्लाइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, बीए भी हो सकता है, टीम भी हो सकती है, मतलब डेवलपर और टेस्टर। सो यहाँ पे है ना ये सब लोग चेक क्या करते हैं ना बेसिकली, इन केस ऑफ अल्फा टेस्टिंग है ना ये आपकी लाइक यहाँ पे इंटरनल टीम होती है पूरी। ओके, और इन केस ऑफ बीटा टेस्टिंग क्या होता है ना आपका एंड कस्टमर भी हो सकता है, यहाँ पे एंड यूजर हम बोलते हैं या एंड कस्टमर। ओके, देखते हैं दोनों का डिफरेंस देखते हैं थोड़ा। ओके, ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या चेक किया जाएगा फ्रॉम द क्लाइंट साइड कि जो भी हमने क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बताई थी वो सही से काम कर रहे हैं नहीं। उसमें भी 2 टाइप रहेंगे, एक अल्फा टेस्टिंग और एक बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है बेसिकली, वो भी इंटरनल क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, विद द इंटरनल पीपल ही चेक किया जाता है, राइट। उसमें थोड़ा कंट्रोल रहता है, मतलब वहां पे डेव टीम का भी इंटरेक्शन रहेगा, टेस्टिंग टीम का भी इंटरेक्शन रहेगा। इन केस कुछ चेंजेस चाहिए तो वहां पे क्विकली चेंजेस हो सकते हैं। बट बीटा टेस्टिंग क्या होता है ना, हमने एप्लीकेशन डेवलप किया, ये फीचर्स डेवलप किए, हमने उसका इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया, उसका सिस्टम टेस्टिंग किया, फंक्शनल किया, नॉन फंक्शनल किया, और अभी हम है ना उसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर है ना एंड यूजर, मतलब एसबीआई के जो भी एंड यूजर रहेंगे ना या जो भी क्लाइंट रहेंगे उनको यूज करने के लिए देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल है ना आपने अगर देखा रहेगा फेसबुक का बीटा वर्जन आता है, व्हाट्सएप का एज ऑफ नाउ बीटा वर्जन, कुछ कुछ फंक्शन बीटा वर्जन में चलते हैं, राइट। क्यूआर स्कैनिंग वाला, वो वेब ब्राउजर वाला, पैरेलल वेब ब्राउजर वाला। आप देखते हो कोई भी एप्लीकेशन का अगर बीटा वर्जन आता है ना तो वो स्टेबल नहीं होता, वो काइंड ऑफ ट्रायल वर्जन होता है। मतलब मार्केट का रिस्पॉन्स देखने के लिए, कस्टमर का रिस्पॉन्स देखने के लिए वो कौन सा वर्जन
वर्जन लॉन्च करते हैं सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन, तो उनका वो बीटा टेस्टिंग चल रहा होता है, राइट। जैसे ही उनका बीटा कंप्लीट होता है ना, देन ओनली वो उसी को एक्चुअल एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर देते हैं, सो दैट सभी यूजर्स उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो बीटा टेस्टिंग इज नथिंग बट, इसमें है ना आपके एंड यूजर के पास कंट्रोल होता है, तो एंड यूजर उसको प्रॉपरली चेक करता है और उसी का फीडबैक के ऊपर है ना ये लोग उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग्स रहते हैं गाइस, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अगर आपने व्हाट्सएप का फीचर देखा रहेगा, व्हाट्सएप का जो भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है ना वो बीटा रिलीज करते हैं, राइट। बीटा वर्जन रिलीज करते हैं बेसिकली, और ये अनस्टेबल होता है। ओके, ये अनस्टेबल होता है। ये किस चीज के लिए रिलीज किया जाता है, फीडबैक चेक करने के लिए। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका फ्रंट एंड मतलब यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, यूजर को और क्या चाहिए। मोस्टली जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ना वो बीटा वर्जन लॉन्च करती है, सो दैट मार्केट से उनको रिस्पॉन्स पता चले। और इन केस ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, जो भी प्रोजेक्ट पे काम चलता है ना, वहाँ पे अल्फा टेस्टिंग होती है विद द हेल्प ऑफ कस्टमर, और इंटरनल टीम ही इवोल्यूशन होता है। तो ये हो गया आपका टेस्टिंग फेज। ओके, सो ये दोनों फेज में से कई ऑर्गेनाइजेशन में ये अल्फा टेस्टिंग होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में अल्फा और बीटा दोनों भी होता है, कई जगह पे सिर्फ बीटा भी होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, बट हमें उसका आइडिया होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे जैसे ही वर्क खत्म होता है, मतलब डेवलपर ने भी टेस्ट किया, टेस्टिंग टीम ने भी किया, यहाँ पे क्लाइंट ने भी टेस्ट किया, और अगर बीटा टेस्टिंग की बात करते हैं तो एंड यूजर ने भी टेस्ट किया, और अभी सब सही से चल रहा है, देन एंड देन ओनली जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे क्या होगा रे, लाइव होगा। फॉर एग्जांपल facebook.com है, आपका SBI है, तो इसका पर्टिकुलर वेबसाइट जो भी रहेगा ना ये लॉन्च होगा EB से। जो भी आपका बैंकिंग बैंकिंग ओके, जो भी आपका वेबसाइट रहेगा वो पर्टिकुलर वेबसाइट क्या होगा रे, मार्केट में लॉन्च होगा। सो वहां से आपके जो भी एंड यूजर्स है उसी को सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट वन इज योर डिप्लॉयमेंट फेज, हम डायग्राम में भी देखते हैं। तो आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जैसे ही खत्म होता है ना, तो उसी सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाता है, मतलब लाइव किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं। वहां पे बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग जो होता है उसी को हम बोलेंगे रिलीज टेस्टिंग। ओके, मतलब जो भी हमने सॉफ्टवेयर क्या किया है रे, रिलीज, सॉरी, ओके, जो भी हमने सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च किया है, राइट, तो वहां पे उसका बेसिक लेवल पे टेस्टिंग होगा। कई जगह पे ये होता है, कई जगह पे होता भी नहीं है, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। रिलीज टेस्टिंग मतलब जो भी हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है वो पर्टिकुलर लिंक चल रहा है क्या, उसका IP एड्रेस प्रॉपरली पिंग हो रहा है क्या, वो उसकी बेसिक बेसिक फंक्शनलिटी चल रही है क्या, ये सारी चीजें कहाँ पे चेक होगी आपकी रिलीज टेस्टिंग में। ओके, सो यहाँ से भी जैसे ही गो हेड आता है, राइट, यहाँ से जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये फेज भी आपका कंप्लीट हो गया है, डिप्लॉयमेंट फेज। एंड योर लास्ट फेज इज द मेंटेनेंस। यहाँ पे मेंटेनेंस की ड्यूरिंग जो भी कुछ चेंजेस आते हैं, जो भी कुछ बग फाउंड होते हैं, या जो कुछ भी फेल्यूर्स है, बेसिकली यहाँ पे जो होते हैं फेल्यूर्स होते हैं, राइट, या जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो ये चेंजेस रिक्वायर्ड कौन से टीम के थ्रू जाते हैं, जैसे हमने देखा था L1, L2, L3। सो ये टीम का काम है, जो भी फेलियर्स आते हैं सॉफ्टवेयर में या जो भी चेंजेस है उसी को हैंडल करने का काम होता है मेंटेनेंस टीम। सो गाइज दिस वन इज द रेफरेंस मॉडल, fish reference model, right, which is very much similar to your ESDLC, because ESDLC सब जगह पे आपको दिखेगा, बस हमें अभी मैप करते चलना है, राइट। सो हमने फर्स्ट मॉडल देखा, दैट इज द फिश मॉडल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे। ओके, एनी टेक्निकल क्वेश्चन गाइज हियर, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ग्रेट, ठीक है। सो यस, व्हेरिफिकेशन आणि व्हॅलिडेशन म्हणजे काय आहे? डिफरन्स काय त्यात? हाँ राइट, परफेक्ट, ठीक है, मला हा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता, राइट, गुड। ओके, चलो, तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कहाँ पे आता है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में उसके बारे में, उसका भी है इन डिटेल, तो बताता हूँ मैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ओके, एंड वैलिडेशन, ओके, वैलिडेशन। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख लो, ओ यहाँ पे रिक्वायरमेंट में हम कौन सा डॉक्यूमेंट पुल अप करते रहे, बनाते, बताइए मुझे, कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पे?
BRD. SRS. BRD BRD. बिजनेस डॉक्यूमेंट रहेगा, राइट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर उसका रिव्यू होगा। रिव्यू मतलब क्या रे, कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है कंपनी में तो एक बंदा अगर बनाता है तो बाकी दूसरे बंदे के साथ या टीम के साथ उसका रिव्यू होता है, मतलब ये डॉक्यूमेंट में कुछ मिसिंग तो नहीं है, राइट, उस हिसाब से। तो रिव्यू मतलब क्या, आपका डॉक्यूमेंटेशन है, अभी तक सॉफ्टवेयर बनाया क्या, नहीं बनाया, हमने डेवलप भी नहीं करना चालू किया, उसको टेस्ट कहाँ से करेंगे, राइट। जो डॉक्यूमेंट लेवल पे चेकिंग होगा ना उसी को हम रिव्यू बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है उसी का भी रिव्यू होगा, डिजाइन डॉक्यूमेंट है उसी का भी रिव्यू होगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे जो कुछ रिव्यू होगा, चेकिंग होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन। बट आप अगर यहाँ पे देखते हो ना, तो यहाँ पे कोडिंग हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे मतलब वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय भी हो गया। यहाँ पे आपका है ना एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो टेस्टिंग किया जाएगा, जो वैलिड होगा ना उसी को हम बोलेंगे वैलिडेशन। और जो डॉक्यूमेंट पार्ट पे रिव्यू किया जाएगा ना उसी को हम बोलेंगे वेरिफिकेशन। तो इन शॉर्ट आपका जो भी वेरिफिकेशन है इट इज टोटली रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डॉक्यूमेंट रिव्यू। ओके, एज ऑफ नाउ आप ऐसे समझ लो, वेरिफिकेशन इज नथिंग बट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। और इसमें चेक क्या किया जाएगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, देखिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए रे, करेक्ट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो करेक्ट भी होना चाहिए और सारी कुछ रिक्वायरमेंट उसमें कंप्लीट भी होने चाहिए। और वैलिडेशन में हम क्या चेक करते हैं, देखिए वैलिडेशन में है ना, हम एक्चुअल अभी सॉफ्टवेयर बना है, राइट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप है, राइट, डेवलप है या अंडर डेवलपमेंट है, और उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। वैलिडेशन में हम सॉफ्टवेयर को क्रॉस चेक कर रहे हैं एंड इन केस ऑफ वेरिफिकेशन हम डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहे हैं। इन शॉर्ट क्लियर है दोनों का डिफरेंस एज ऑफ नाउ? यस सर। सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग नहीं समझा सर। हाँ ठीक ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो, कोडिंग फेज में कौन कोडिंग करेगा, आप ही बताओ मुझे। कोडर, डेवलपर, राइट। सो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं थोड़ा, ये डेवलपमेंट फेज में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक प्रोग्राम